یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن تھے۔ مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ، گرمی سے تپتا ہوا شہر اور فضا میں اڑتی ہوئی گرد و غبار ہر گلی کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ انہی گلیوں میں ایک معصوم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال کمزور قدموں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں اچانک ان کی نظر دور ایک کھجوروں کے باغ پر پڑی۔ یہ باغ ابو جہل کا تھا اور وہ ایک یہودی شخص کے ساتھ مل کر کھجوریں ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا، شاید وہاں سے 2 کھجوریں مل جائیں۔ بھوک بہت شدت اختیار کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آپ باغ کے قریب پہنچے اور ادب سے سلام عرض کیا، السلام علیکم چچا جان۔ پھر نرمی سے فرمایا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے غصے اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، کھجوریں تو دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ یہ جو یہودی کھڑا ہے، اس کی بوری اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تردد کے اس شرط کو قبول کیا۔ یہودی نے حیرت سے پوچھا، اے محمد، تم یہ بوری اٹھا سکو گے اتنی چھوٹی عمر میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، ہاں انشاءاللہ ضرور اٹھا سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و غبار سے اٹے ہوئے کمزور جسم کے ساتھ وہ بھاری بوری اپنے سر پر اٹھائی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے ابو جہل کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ چہرے پر تھکن ضرور تھی، مگر روح میں ایک سکون، ایک روشنی نمایاں تھی۔ ابو جہل اور وہ یہودی خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جب گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری زمین پر رکھ دی۔ یہودی نے اسے اندر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے عرض کیا، چچا جان، اب مجھے کھجوریں دے دیں۔ ابو جہل نے طنزیہ انداز میں صرف 1 کھجور دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سے پوچھا، کیا آپ مجھے ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصوم سی درخواست جیسے ابو جہل کے اندر نفرت کی چنگاری کو آگ بنا گئی۔ اس نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ لمحہ رک سا گیا۔ فضا ساکت، آسمان سناٹا، سورج شرمندہ، پہاڑ بھی اشک بار۔ ایک معصوم پر ایسا ظلم۔ ابو جہل ہنستا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ یہودی بوری کھولتا ہے، حیرت کا ایک عظیم منظر اس کے سامنے آتا ہے۔ تمام کھجوریں پتھروں میں بدل چکی تھیں۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ دم بخود رہ گیا۔ فوراً دوڑتا ہوا اپنے سردار کے پاس جا پہنچا۔ ادھر ابو جہل دوبارہ باہر آیا اور طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، تو بڑا جادو کر نکلا، تو نے میری کھجوروں پر جادو کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے سر جھکا کر صرف اتنا فرمایا، چچا جان، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے ایک اور تھپڑ مارا، ایسا تھپڑ جس کی آواز جیسے آسمان کو چیرتی ہوئی زمین تک پہنچی، اور اس معصوم بچے کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو لڑک گیا۔ لیکن کیا کردار تھا، کیسی رحمت تھی، کیسا دل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا پوچھا، چچا، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ! یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جس نے بدلہ نہیں لیا، دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے اور ایک پہاڑ کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے درخت اور پہاڑ پکار اٹھے ہوں، افسوس، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، اور آج وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک، ظلم و بے توقیری کا شکار ہیں۔ ادھر وہ یہودی سردار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو عقل سے باہر ہے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غیر معمولی طاقت ہے۔ ایک تھپڑ لگا اور پوری بوری پتھروں سے بھر گئی۔ سردار کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہم نے بھی اپنی آسمانی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے، سب سے عظیم رسول۔ لیکن کیا واقعی یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ ہمیں اپنے مذہبی عالم سے معلوم کرنا ہوگا، اور اگر یہ سچ ہوا تو ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
ये सुनकर वो यहूदी फौरन अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जब वो खजूर के बाग के पास से गुजरा तो रुक गया। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। पूरा बाग दरख्त दरख्त पत्थरों से भर गया था। कहीं एक भी खजूर ना थी। हर तरफ बस पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। वो एक लम्हे के लिए भी न रुका। दौड़ता हुआ अबू जहल के घर जा पहुंचा। चीख कर बोला, भाई तुम्हारे बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब भी न संभले तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही हल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगो। मगर अबू जहल माफ़ी मांगने वालों में से ना था। वो जालिम था, मगरूर था। उसने बज़ाहिर नरमी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे। जब वो घर पहुंचे तो अबू तालिब अकेले मौजूद थे। अबू जहल ने आवाज़ लगाई, ए अबू तालिब, कहाँ है तुम्हारा भतीजा मोहम्मद? वो बड़ा जादूगर निकला है, उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर उसने तंज से कहा, कहीं किसी पहाड़ के किनारे किसी शेर या रीछ ने तो उसे खा नहीं लिया? ये सुनकर अबू तालिब घबरा गए। उन्होंने एक लम्हे की भी ताखीर ना की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे खामोश बैठे रो रहे थे। फरमा रहे थे कि अगर मेरे वालिद हयात होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक ना करता। मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला। उनकी तन्हाई और दुख को देखकर जंगल के जानवर, शेर, रीछ, हिरन सब वहाँ आ गए। ऐसा महसूस होता था जैसे वो सब आपके दर्द को महसूस कर रहे हों। शेर की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये तकलीफ़ हमारे दिलों को चीर रही है। ये थप्पड़ जैसे हमें लगा हो। आप मत रोइए, आपके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते। चंद ही लम्हों बाद चचा अबू तालिब वहाँ पहुँचे। ये रूह परवर मंजर देखकर वो कुछ बोल ना सके, बस साकित रह गए। फिर आगे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और बोले, मेरे लाल, किसने तुम्हें तकलीफ दी है? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसके बाद अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर वापस घर आ गए। लेकिन उसी रात अबू तालिब खुद अबू जहल के घर पहुंचे। उन्होंने गुस्से के बजाय सच्चाई और संजीदगी से बात की। तुम उसे जादूगर कहते हो, उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, न तुम्हारी खजूरें चुराईं, न तुम्हारे खिलाफ कोई लफ्ज़ कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं, याद रखो एक दिन वो पहाड़ों को भी पिघला देंगे। ये कहकर अबू तालिब वहाँ से चले गए। अबू जहल खामोश खड़ा रहा। दिल में कुछ महसूस तो कर रहा था, लेकिन गुरूर इसे सच मानने नहीं दे रहा था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब नूर फैल गया। लोगों ने समझा कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत कुछ और थी। आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहे हैं, एक दिन उन्हीं आंसुओं से वो किताब नाजिल होगी जो दुनिया को रोशनी देगी। यही वो हस्ती है, सबसे अजीम इंसान, जो आखिरी नबी बनकर दुनिया में रहमत बन के आया है। जब यहूदियों को इस मौजज़े की खबर मिली तो उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी। वो जान गए कि वही हस्ती जिसका इंतज़ार था अब बनी इस्माइल में आ चुकी है, ना कि उनके कबीले में। इसी हसरत और हसद ने उनके दिलों में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की साजिशें शुरू कर दी। उनमें से एक यहूदी गुस्से और हैरत के आलम में अपने मजहबी पेशवा के पास पहुंचा और तमाम वाक़या तफसील से सुनाया। पेशवा ने खामोशी से आंखें बंद की और फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैं उसे पहचान गया हूँ। यही वो नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके कंधे पर मोहरे नबूवत और दूसरी उनकी आंखों में बसी हुई रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान ले आएंगे? वो कुछ देर चुप रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हम चाहते थे कि आखिरी नबी हमारे कबीले से हो। चूंकि ऐसा न हुआ तो हम सच को भी झुटला देंगे। उधर मक्का में चचा अबू तालिब हर साल की तरह इस साल भी शाम की तिजारती सफ़र की तैयारी में लगे हुए थे। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और मोहब्बत भरे लहजे में अर्ज़ किया, चचा जान,
क्या मैं भी आपके साथ शाम जा सकता हूँ? अबू तालिब इनकार न कर सके। अगले ही दिन वो दोनों एक तिजारती काफले के साथ रवाना हो गए। चंद दिन के सफर के बाद काफला बुसरा के मकाम पर पहुंचा। वहां एक गिरजाघर था जहां एक बुजुर्ग ईसाई आलिम, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा पादरी माना जाता था, क़याम पजीर था। काफला जब इस इलाके से गुजर रहा था तो पादरी की नज़र एक नौजवान पर पड़ी। उसने देखा कि उस लड़के के सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है। जहां वो जाता बादल भी साथ साथ चलता। ये मंजर देखकर वो हैरत में पड़ गया। उसने फौरन अपनी आसमानी किताबें निकाली और पढ़ना शुरू किया। तस्दीक हो चुकी थी, यही वो नबी थे जिनका जिक्र तौरात और इंजील में मौजूद था। फिर उसने अपने खादिम को भेजा और कहा, जाओ काफले के तमाम लोगों को मेरे पास दावत पर बुलाओ। काफले वाले इस दावत को कबूल करते हुए गिरजाघर पहुंचे। पादरी ने सबकी इज्जत और तकरीम के साथ बेहतरीन ज़ियाफत दी। कुछ देर बाद उसने अबू तालिब को अलग बुलाया और कहा, ए काफले के सरदार, मुझे लगता है ये बच्चा यतीम है ना? अबू तालिब ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, अब मैं ही उसकी किफ़ालत करता हूँ। पादरी ने संजीदगी से कहा, याद रखो, तुम्हारा भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है। उसके पुष्ट पर मोहरे नबूवत है। उसकी आंखों में वो रहमत है जो सिर्फ नबियों में होती है। उसे कभी तन्हा न छोड़ना। अगर यहूदियों या नसारा को उसकी पहचान हो गई तो वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब ने हैरत से पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? पादरी ने जवाब दिया, हमारी आसमानी किताबों में ये सब कुछ लिखा है। अब जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास ले आओ। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए रवाना हुए। इसी दौरान पादरी की नज़र काफले की तरफ बढ़ते कुछ अजनबी सिपाहियों पर पड़ी। वो फौरन उनके करीब पहुंचे और पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम रोम के सिपाही हैं। हमारे बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं और हमें उन्हें ढूंढकर कत्ल करना है। पादरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग फजूल कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाया है तो वो ही उसकी हिफाजत भी करेगा। इस दुनिया में कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वापस चले जाओ। ये सुनकर वो सिपाही खामोशी से लौट गए। उसी रात पादरी ने अबू तालिब को दोबारा गिरजाघर बुलाया और कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया ना कि मेरी बात सच थी। यहूद और नसारा आखिरी नबी के दुश्मन बन चुके हैं। अगर उन्होंने पहचान लिया तो ज़रूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरी मानो, अपने भतीजे को शाम लेकर मत जाओ, बल्कि वापस मक्का चले जाओ। अबू तालिब ने फौरन वापसी का फैसला किया। काफला मक्का की तरफ रवाना हो गया। वापसी के सफ़र में एक मकाम पर एक घोड़ा खड़ा नजर आया, मगर उस पर कोई सवार न था। पास जाकर देखा तो एक शख्स नीम मुर्दा हालत में पड़ा था। ये वही यहूदी था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आया था। मगर आज वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसे पानी पिला रहे थे, उसकी जान बचा रहे थे। काफला उसे साथ लेकर आगे बढ़ा। चलते चलते वो समंदर किनारे एक मछेरे की बस्ती में पहुंचे और वहीं क़याम किया। ये बस्ती बुत परस्ती और तवाहम परस्ती में डूबी हुई थी। अबू तालिब जब वहां पहुंचे तो देखा कुछ लोग मूर्तियों के सामने झुके हुए हैं। उन्होंने एक से पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, कई दिनों से हमारे जाल खाली जा रहे हैं, मछलियां नहीं आ रहीं, इसीलिए हम समंदर के देवता को खुश करने के लिए पूजा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा और निगाह एक बड़ी मूर्ति के करीब बंधी एक औरत और उसके बच्चे पर जा रुकी। उन्हें कुर्बानी के लिए बांधा गया था। उन लोगों का अकीदा था कि अगर औरत और बच्चा कुर्बान किए जाएंगे तो समंदर का देवता खुश होगा और मछलियां वापस आ जाएंगी। नबी करीम आहिस्ता से वहां पहुंचे और मां बेटे को जंजीरों से आज़ाद कर दिया। इसी वक्त एक मछेरे ने शोर मचाया, जिन्हें कुर्बानी के लिए बांधा था उन्हें किसी बच्चे ने आज़ाद कर दिया है। लोग गुस्से से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने दौड़े। अबू तालिब फौरन आगे बढ़े और सबको रोकने की कोशिश की। तभी एक अजीब मंजर सबकी आंखों के सामने आया। वो बड़ी मूर्ति खुद ब खुद गिरकर चकनाचूर हो गई। समंदर में बुलंद लहरें उठने लगीं और उनके साथ मछलियों की भरमार साहिल तक आ गई।
मछेरे जाल डाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे। सारी बस्ती खुशी से झूम उठी। ये सब देखकर अबू तालिब हैरान रह गए। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त समंदर के किनारे खड़े अपने रब से दुआ कर रहे थे और अल्लाह ताला में उनकी दुआ कबूल फरमा ली। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का में पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने चचा अबू तालिब की बकरियां चराते और यूं सब्र, आजिजी और रहमत का ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अजीम इंसान थे। वो हस्ती जो रातों को उम्मत के लिए जागकर दुआएं करते थे, वो हस्ती जो खुद भूखे रहते लेकिन दूसरों को खिला देते, वो हस्ती जो पत्थरों से जख्मी हुए मगर बद्दुआ न की, वो हस्ती जिन्होंने अपनी जान, सुकून और आराम सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ हमारी हिदायत के लिए। अब सवाल यह है कि क्या हमने उनका हक अदा किया? क्या हमने उनकी सुन्नत को अपनाया या दुनिया की मोहब्बत में उनके अहकाम को भुला दिया? वादा कीजिए, आज हम ये अहद करेंगे कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेंगे, उनके दीन को मजबूती से थामेंगे और अपनी ज़िंदगी में उनकी तालीमात पर अमल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को जान सकें। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।